Yes. Okay, thank you, sir. I request everybody to please switch on their cameras, please. Please, I won't start the session till the time I see everybody's camera on today. Shri Krishna, sir, I'll start taking the name. Please start the cameras. Narendra, sir, Shahid, Supriya, ma'am, please. Okay, great, thank you. And I request everybody to please keep the cameras on till the time we complete the session. Let's keep the session communicative and two-way. Oh, so good morning, everybody. I am glad to welcome you all to our wellness medium, the Utthan session. I hope we have done the homework which has been given by Didi last time, which was thinking good, keeping our intention good while we are working at a workstation, keeping the climate positive and good vibes. We have accumulated here today for the next learning. We are in the chapter 3 of the topic which is ongoing right now, science of forgiveness. I would like to welcome our speaker today, Sangeeta Didi. Didi, welcome back, and I request you to please take over the session now. Om Shanti. Good morning, everybody. So, seeing very beautiful faces, fresh faces. This is called good communication, a very good stand. In fact, it's a good start of a good discipline also. मतलब हम लोग अभी 1.5 साल के बाद अब डिसिप्लिन अच्छे से मेंटेन कर रहे हैं, ऐसा है ना? So it's wonderful. Thank you very much. So let's have these smiling faces always throughout the session, at least nodding, whatever you wish. तो हमें भी पता चलता है कि कुछ चल रहा है. Okay. So 1 minute silence and we can recall our last time's session and obviously the practice which we must have all done it. 1 minute silence. I'm a point of light, pure energy, very powerful, very much powerful to forgive everyone in my life, getting the rays from the Supreme Soul, always, the rays of love, peace, happiness, हमेशा मेरे ऊपर बरसते रहा है और थ्रू आउट द सेशन ये बरसता रहेगा. ओम शांति. Okay, so everyone must have done that homework. पुष्पांजलि बहन ने अच्छे से बता दिया. This was the homework, no? This is क्या है? His intentions are good. He, she is a pure soul. I am also a very pure soul. तो ये होमवर्क किया सभी ने कि कुछ because mistakes के we must have come across many mistakes, है ना? एक हफ्ते में तो बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट्स आए होंगे जिसमें मिस्टेक हुआ हुआ. अच्छा, सभी ने किया प्रैक्टिस? थोड़ा थोड़ा किया? चलो पूरा नहीं किया, थोड़ा थोड़ा किया प्रैक्टिस. होमवर्क याद रहा ऐसे कितने थे? अच्छा, okay, 1 2 3, wonderful. And how did you feel while doing that? कि his intentions are very good. Maybe दिखाई दे रहे हैं लेकिन his intentions are good. ये फील करना है हमको. तो ऐसे कितने थे? How did you feel after feeling this कि his intentions are, he is a pure soul. ठीक है, layers आ गए हैं but he is a pure soul. कैसा लगा ये फील कर? सोचते समय भी अच्छा लगा है? अच्छा लगा? Yeah. In fact, it is a science. Unless and until I don't do it, I won't get the results. And the moment I think pure, कि I am a pure soul and he also is a pure soul, ठीक है, layers आ गए. हमारी जो उसके प्रति की concentrated feelings है ना, वो reduce हो जाती है, वो कम हो जाती है.
तो इसलिए एक तो ये हमें करना है, और दूसरा अभी ऐसा आई वॉज वी हैड डिस्कस लास्ट टाइम कि टुडे विल डिस्कस अबाउट गिल्ट, कि गिल्ट कॉन्शियस भी बहुत होते हैं हम लोग। कुछ मिस्टेक हो जाती है, एक होता है दूसरा मिस्टेक करता है, देन आई हैव टू फॉरगिव, एक है आई माई सेल्फ डू द मिस्टेक, देन आई नीड टू, अब उसका भी शुड आई फॉरगिव माई सेल्फ or not. Now guilt is I caused pain to you, you got hurt. So you got hurt, you are creating also low energy, low feelings. I caused pain to you, ये भावना मुझे भी लो में लेके जा रहा है। तो अब जितनी बार हम ये फील करते हैं I caused pain to him, I caused pain, तो क्या कर रहे हैं हम लोग कि गिल्ट मीन्स सेल्फ क्रिटिसिज्म, बार बार क्रिटिसाइज कर रहे हैं, राइट? क्योंकि एंड क्रिटिसाइज खुद को करना, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया, एंड जितनी बार नाउ दिस क्रिटिसिज्म इट्स जस्ट रिपीटिंग दैट स्टेटमेंट अगेन एंड अगेन, मैंने ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। इन अदर वर्ड्स इट्स लाइक हिटिंग माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, मैं पत्थर मारती जा रही हूँ अपने आप को बार बार। तो जितनी बार मैं मारूंगी उतनी बार दर्द किसको होगा, घाव किसका बढ़ेगा, और देयरफॉर मैं लो एनर्जी खुद ही फील करती जाऊंगी। तो इसलिए इट्स लाइक सेल्फ क्रिटिसिज्म हिटिंग अगेन एंड आई एम रिड्यूसिंग द सोल पावर, और जितनी बार मेरी सोल पावर कम होती जाएगी, अब नाउ टू चेंज इट विल बी मोर डिफिकल्ट। हाउ डू आई रिड्यूस माई सोल पावर? जब मैं बार बार कहती जाऊंगी, फील करती जाती हूँ, तो मुझे मेरा डिटर्मिनेशन पावर, विल पावर, एंथुजियाज्म, पीस, दीज आर द सोल पावर्स, ये रिड्यूस होता जाता है। और ये रिड्यूस होगा, इसका मतलब आई एम, अब मेरे को चेंज होने में और डिफिकल्ट होगा। तो इसका मतलब आई विल बी प्रोन टू मिस्टेक अगेन, क्योंकि चेंज होना मुश्किल है। अब मैं आज लेट आई, मुझे फिर बहुत अच्छा नहीं लगा, आई फील कि मैंने गलती की, लेकिन फिर भी मिस्टेक हो गई, मैं फिर अपने आप को कोसती हूँ, बहुत डिस्टर्ब होती हूँ। अब इस डिस्टर्बेंस में मेरे कितने सारे और काम इफेक्ट हो जाते, मेरा कंसंट्रेशन और रिड्यूस हो जाता है, तो बाकी एरियाज में भी मिस्टेक्स होने लग जाते हैं, और उस मिस्टेक के कारण फिर और लो फील करना, लो सेल्फ एस्टीम। दिस इज द रिजल्ट ऑफ द गिल्ट। रियलाइजिंग द मिस्टेक, एक थॉट चाहिए कि ओके हो गया, अब फाइन, जस्ट वन थॉट आई नीड टू गेट आउट ऑफ द गिल्ट। कौन सा है वो थॉट? कि बस, बिकॉज गिल्ट क्या कर रहा है, इट इज लाइक यू मेंटली स्पीकिंग मेनी टाइम्स, और किसी को भी आप नेगेटिव चीज एक बार बोलो, दो बार बोलो, तीसरी बार वो इरिटेट हो जाएगा, नो वन वुड लाइक इट। तो आई एम स्पीकिंग दैट स्टेटमेंट टू माई सेल्फ अगेन एंड अगेन, तो हु इज गेटिंग इरिटेटेड, हु इज गेटिंग बर्डन्ड, बार बार कहने से। और फिर कभी कभी जैसे दुनिया दूसरे के लिए भी होता है, जब हम बार बार दूसरे को कहते हैं ना, उसको फिर असर भी नहीं पड़ता। तो बार बार अपने आप को कहने से वन वे है, एक तो डिफिकल्ट हो जाएगा चेंज, दूसरा है मुझे असर भी नहीं पड़ेगा, मैं तो हुई ऐसी, मैं तो, मेरे से तो ऑलवेज मिस्टेक होता। मतलब बार बार अपने आप को, इट्स लाइक फाइनली यू आर मेकिंग योर सेल्फ इन अ वेरी लो कैटेगरी, द सोल पार्ट। तो इस कारण बार बार, तो गिल्ट मीन्स नॉट स्पीकिंग अगेन एंड अगेन। अब उसके लिए क्या चाहिए होता है, हो गई मिस्टेक, हो गई बड़ी से बड़ी भी मिस्टेक हो गई, ओनली वन थिंग इज डिटर्मिनेशन, और दूसरा कि एक तो रियलाइजेशन जरूरी है, ओके रियलाइज कर दिया, एंड रियलाइजेशन के बाद डिटर्मिनेशन।
I've realized this is a very wrong part on myself. अब not and a promise not to do it again. Those steps is more than enough to get myself relieved from the mistake. But अब उसमें अगर अब दूसरी बात है, तो क्या इसमें हमको सॉरी, तो actually if I really want to increase my soul power, I just need to have this one thought, realization and determination. अब जितनी बार अब हम सोचते हैं रियलाइज तो कर दिया, मैंने आपको सॉरी बोल दिया, लेकिन फिर भी आप बहुत हर्ट में हो, आपको आप फिर भी जैसे मेरा यू आर नॉट रिस्पेक्टिंग माय वर्ड्स, एंड हम सोचते मैं बार बार सॉरी ना, अच्छा ठीक है ना, मेरे से मिस्टेक हो गई, सो आई गो एंड अगेन asking sorry, telling sorry. Should I again and again do that apologizing? Apology करनी चाहिए मुझे again and again, क्योंकि जितनी बार मैं apology करूंगी उतनी बार मैं मिस्टेक कॉन्शियस होती जाऊंगी, मिस्टेक की फीलिंग होती जाएंगी, और उतनी बार मैं मेरी बैटरी और डाउन होती जाएगी, सॉरी सॉरी। अब अच्छा, नाउ रियलाइजेशन हो गया, until that part is more important for me. उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है, उसके बाद एंड उसके बाद जो भी कुछ हो रहा है आफ्टर द मिस्टेक, मतलब मैं जैसे सपोज उसने अपने आप को वो बार बार कहता जा रहा है, मतलब वो नहीं मेरे मान रहा है, एपोलॉजी मेरा नहीं, अब एक्चुअली दैट पर्सन माइट थिंक कि आई डोंट थिंक सो यू हैव रियलाइज द मिस्टेक, इट्स बिकॉज, और आई नो कि आई वेरी मच रियलाइज इट, इट्स बिकॉज उसका पेन गया नहीं है, शी इज स्टिल इन पेन, सो शी फील्स, ही फील्स आई एम नॉट रियलाइज्ड। तो उसका मेरे उसके हिसाब से मेरी रियलाइजेशन क्या है कि when she will get out from that pain, and last time we had seen उसका पेन, to get out from that pain, उसने बार बार फील किया है, एक दिन तक तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया, वो ग्रूव बनाता जा रहा है, बनाता जा रहा है, तो उसका खड्डा बहुत बड़ा है, वो उतना खड्डा बनाया हुआ है। अब उसके हिसाब से मेरे लिए वो मुझे माफ नहीं कर रही है, डजंट मीन आई एम लाइक आई कैन गो, आई शुड गो डाउन, आई शुड जस्ट बी फील वेरी गिल्टी, क्योंकि उसका खड्डा किसने बनाया, उसका ग्रूव किसने बनाया, उसका ग्रूव किसने बनाया, उसने खुद ने बनाया। सो देयरफॉर अब आई हैव नो रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई विल जस्ट गो डाउन जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। एक बार ये एक आई नो दैट वन फैमिली, so the doctor was treating the person and the doctor, जब कुछ ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया या the patient कुछ मिस्टेक हो गया, पैर में प्रॉब्लम आ गई, and now the patient is permanently in the wheelchair, वो कभी चल ही नहीं सक रहा है until now, and now the doctor is very much in guilt कि मेरे से मिस्टेक हुई, ये हुआ, the family is blaming continuously the doctor, परिवार को एक एंगर है, the patient is very much in pain और the doctor is in guilt। अब क्या हो रहा है, the situation becoming bigger, एक है मिस्टेक हुआ, दूसरा पेन हो गया, तीसरा ब्लेम। अब कोई भी क्या इन दिस सर्कमस्टेंसेस हीलिंग अच्छी होगी, हीलिंग के लिए क्या चाहिए, नाउ फिजिकली हीलिंग दे हैव ट्राइड देयर बेस्ट, नहीं हो रहा है, नाउ वी वांट वेरी सो मच सोल पावर सो इफेक्टिव दैट उसका इतना पावरफुल हीलिंग हो
इमोशनल सोल पावर से उसकी हीलिंग हो, वाइब्रेशंस थॉट पावर से वो हील हो जाए, उसके लिए क्या चाहिए? सोल पावर बहुत हाईएस्ट चाहिए। और जब हम बार बार, अगर द पेशेंट, द डॉक्टर एंड एडेड टू दैट, एडेड मोर इज द फैमिली, वो बार बार उसको कहता रहे मेंटली, तुमने ये मिस्टेक की, तुमने ये मिस्टेक की, तो क्या हो रहा है? द सोल पावर इज कंटिन्यूसली रिड्यूसिंग. So at least the people who are suffering the problem, at least they need to very much make up their soul power, because they are suffering the problem. करने वाले ने जो किया ठीक है, लेकिन अब मेरा तो पैर चला गया ना, तो मुझे अपने आप को हील करने के लिए कितना बड़ा शक्ति चाहिए? मन की शक्ति चाहिए, सो दैट एक राइट गाइडेंस हो या राइट इंट्यूशन हो, कौन सा राइट ट्रीटमेंट चाहिए. इफ आई जस्ट गो ऑन ब्लेमिंग और थिंकिंग वेरी मच बैड अबाउट माई सेल्फ, क्या हो गया मेरे साथ, क्या मेरा भाग्य है, कैसा मुझे डॉक्टर मिला, तो व्हाट आई एम डूइंग. एंड ये ब्लेम गेम या ये गिल्ट, तो गिल्ट therefore actually it is making the problem more worse. You're worsening the situation. Therefore कुछ भी बात हो जाए, yes of course we have to realize, of course we have to understand, of course we have to apologize, but full stop. Determination not to do it again and get on. नहीं तो हम कभी भी पास्ट से निकल नहीं पाते हैं. वन सिस्टर कम्स टू अस फ्रॉम वेरी वेरी पॉश कॉलोनी इन साउथ दिल्ली, एंड उनकी डॉटर है, एंड वेरी वेल टू डू फैमिली एंड ऑल, हैविंग अ किड, 3-4 साल का था वो बच्चा, एंड this she was of course going through some relationship issues and all, but it was okay, वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ होता भी है. और वन फाइन इवनिंग द मदर गोज टू द डॉटर, और उसने फिर कहा कि, मतलब जैसे नॉर्मली बाजू में ही रहते थे, तो चली गई, और फिर उसने कहा कि आप प्लीज आप ऐसे करो, आप 15 मिनट रुक जाओ. अब वो मदर हरी में थी कुछ, तो उसने कहा कि नहीं मैं नहीं रुकती हूँ, मैं जाती. 30 minutes after she reached home, उसको मैसेज आया, उसने सुसाइड कमिट कर ली, द डॉटर ने. अब वो दैट मदर, वो इतनी गिल्ट में कि इफ आई वुड हैव जस्ट स्टॉप्ड फॉर 10 minutes, बहुत गिल्ट में 1 month 2 month 1 साल इधर लेके आए, और हमेशा उसका एक ही प्रॉब्लम हमसे कि मैं अगर वो रुक जाती, मैं क्यों नहीं रुकी, मैं क्यों 10 मिनट नहीं रुकी. एंड शी इज, बिकॉज ऑफ विच ऑब्वियसली एज भी है, बहुत सारे फिजिकल इश्यूज से शी इज गोइंग थ्रू. नाउ व्हाट इज दिस प्रॉब्लम? एक जन हो गया, उससे जो भी मिस्टेक हुई उसका भी, चाहे चलो मिस्टेक हुआ या नहीं हुआ, एक्चुअली डायरेक्टली तो कोई मिस्टेक था भी नहीं, बट अब वो अपने आप को माफ नहीं कर पा रही है. सिंस इट्स 10 years शी इज नॉट गेटिंग आउट ऑफ द इश्यू. हु इज दैट मिस्टेक नाउ? उसने खाली 10 मिनट के लिए बोला, लेकिन अब हमें पूरा जीवन भर. सो होल्डिंग ऑन टू एनी मिस्टेक्स का जो संस्कार होता है, that makes the situation. I just hold on. So it's like not only I hold on to my mistake, and therefore my nature is of holding on. तो मैं सबकी मिस्टेक को होल्ड ऑन करती रहती हूँ, एंड इट इज ऑलवेज इन द माइंड, बिकॉज द संस्कार क्या है? लेने का, चिपकने का. एंड द वन हु हैज द संस्कार ऑफ होल्डिंग ऑन अदर्स मिस्टेक, सेल्फ मिस्टेक, उसका दिमाग किससे भरा हुआ होगा? कचरे से या अच्छी चीजों से भरा हुआ होगा? सब कचरा, समथिंग विच अदर्स आर गिविंग, वो मैं उधर उठा उठा के रख रही हूँ. सो दिस इज देयरफॉर
होल्डिंग ऑन इज अ बिगेस्ट इश्यू। तो इसलिए अपने आप को, इनफैक्ट गिल्ट, मिस्टेक इतना डैमेजिंग नहीं होता है, जो उसका गिल्ट जो है ना, इट बिकम्स मोर एंड मोर डैमेजिंग बिकॉज आई एम नॉट एबल टू गेट आउट ऑफ द थिंग. So therefore, one is I just understand it the best way, and then realize and determine the only way of getting out of the guilt. And now, how will the change happen? Change methods. एक तो कोई भी कार्य जितना हम रेगुलरली करेंगे, अब जैसे देखो डॉक्टर है, वो सर्जरी उसके लिए ना, सुबह रात को लेट हुई, सुबह उठा गए और फटाफट सर्जरी की आ गए. फॉर हिम सर्जरी इज नथिंग, बट फॉर अस it will be very difficult. Why that thing has become easy for him? Anything when done repeatedly, regularly, it becomes easy. तो अगर हम सोचे ये तो बहुत मुश्किल है, how do I forgive others, or how can, actually it is just a, it's one determination that I'll do it. And then एक बार करने के बाद courage, हिम्मत आ जाती कि हाँ कर सकती, 2-3 बार करो, हैबिट हो जाए. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि वंस इट बिकम्स हैबिट, देन इट बिकम्स वेरी इजी. और एक बार वो हैबिट बन गई तो अब नाउ जैसे बच्चे हैं, वी नो कि बच्चों को बहुत मुश्किल होता है. क्या होता है, छोटे होते थे ना बच्चे, 2 years old चाइल्ड, उनको आईपैड दिखा दिखा के खाना खिलाते. आप में से भी कोई करते होंगे, ऐसे किया भी होगा. तो क्या हुआ, तो अब अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा है, आपका काम हो गया, इजीली हो गया, वीडियो ने कर दिया. अब वही बच्चा बड़ा हो गया, उसको जब तक सामने टीवी नहीं ओपन हो उसको खाना नहीं अच्छा लगता. तो आप क्या कहेंगे, हैबिट है, हैबिट है, हैबिट है, and he's not able to get out of it. अब जब, if I have put my effort on getting out of any habit, then it will be easy for me also to guide that child or to motivate the child or to think good about the child कि नहीं, ये बेशक ये आदत पड़ गई है, गलत आदत है, लेकिन निकल जाए. क्योंकि मैंने किया है तो मैं दूसरे बच्चों को भी बोल सकती हूँ कि नहीं निकल सकता. नहीं तो ज्यादातर पेरेंट्स क्या प्रॉब्लम बताते बच्चों के लिए, आदत, ये ना इसकी आदत है, ये जाती नहीं है, आदत है. क्योंकि मैंने कभी वर्क नहीं किया आदत पे, तो मुझे पता भी नहीं कि ऐसे जा भी सकती है या नहीं. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. एंड व्हेन वी अंडरस्टैंड द रियलिटी, जैसे कोई मिस्टेक हुई, सपोज जैसे ही मैंने रिपीट किया, इसने ऐसा किया, नो, अंडरस्टैंडिंग इज फाइन एंड क्रिएटिंग पेन is a choice. Creating understanding is very important. लेकिन अब मैंने पेन क्रिएट किया तो क्या हुआ, एक्चुअली मेरे अंदर वो ग्रूव बन गया ऑफ द पेन, क्योंकि मैंने पेन क्रिएट किया इधर. और जितने बार मैं उसको, उस ग्रूव को समझती हूँ, एवरी थॉट विल deepen the groove of the pain, and then it develops into a sanskar. ये खराब है, ये और खराब, ये खराब है और खराब. और फिर दूसरे को भी, अब जैसे मैंने आपके लिए कहा, फील करा, इसने ऐसा मिस्टेक किया, इसने ऐसा मिस्टेक किया, तो उसको भी यही फीलिंग आ रही है उसने ऐसा मिस्टेक की. सेम मैं कह रही हूं आप रॉन्ग हो, आपको सिमिलर थॉट आ रहा है कि मैं रॉन्ग हूं. तो व्हाट इट इज हैपनिंग, सो माय ऑल दिस हैबिट एक्चुअली इज अ बिग प्रॉब्लम फॉर माई सेल्फ. सो इजिएस्ट इज व्हाट,
ट्राइंग। और हैबिट ट्रायल की कोई एज नहीं होती। वंस यू डिसाइड, मदर टेरेसा एट द एज ऑफ 60 विल पावर एक्टिवेट हो गया, फ्रॉम ऑर्डिनरी नर्स नन टू अ मदर टेरेसा, शी बिकेम मदर टेरेसा। और मोहनदास करमचंद गांधी एट द एज ऑफ 20, जिस दिन रियलाइज हुआ, विल पावर एक्टिवेट हो गई, ही बिकेम महात्मा गांधी। एंड नरेंद्र 9 years age, at the age of 9, ordinary नरेंद्र बिकम स्वामी विवेकानंद। तो जिस दिन विल पावर एक्टिवेट हो जाए कि आई विल नॉट डू इट, आई हैव अंडरस्टूड, आई विल नॉट डू इट, उसके लिए एवरीथिंग बिकम, बिकॉज सोल पावर इंक्रीज हो जाएगा। द विल पावर एंड एंथुजियाज्म, करेज, तो हमारी सोल पावर बढ़ जाती है। और जब सोल पावर बढ़ जाती है, इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस। तो क्या करना है? सोल पावर बढ़ाना है या गिल्ट में रहना है? और फिर हम सोचते कि जब तक वो दूसरा, गिल्ट का भी एक और फॉर्म ये होता है कि वो दूसरा जब तक ऐसे फील करता रहेगा, यू नॉट, जैसे हम आंख मिला नहीं सकते हैं, हमको लगता है कैसे मैं उसके सामने जाऊं, अब मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो बिकॉज मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? क्योंकि मैं अपने आप को बहुत लो सेल्फ एस्टीम में फील करती हूँ। जितनी बार मैं उसके पास, उसको सामने जाती हूँ या उसको याद करती हूँ, मुझे उसके कमरे में रहना है, उसके साथ काम करना है, तो आई एम फीलिंग वेरी लो। दैट वाइब्रेशन कि मैं रॉन्ग हूँ, मैं रॉन्ग हूँ, मैं मिस्टेक। And in that vibration, both of us are working or both of us are living. कैसा हो जाएगा? So इसलिए guilt, if I am responsible for what mistake I have done, so you are also responsible for what mistakes you are going through. For whatever you are going through, you are responsible for whatever I am going through. तो अगर उसने, I am not responsible for your hurt, and therefore if you are not responsible for my hurt, I am also not responsible for your hurt. हम आपके हर्ट का जिम्मेवार मैं नहीं ले सकती, मेरी मिस्टेक की जिम्मेवारी मेरी है, आपके हर्ट की जिम्मेवारी मेरी नहीं। क्यों? मैंने किया, ये गलत किया, लेकिन जो थॉट क्रिएट किया वो किसने किया? हमने किया। और कितना करना है, कितने समय तक उस थॉट को क्रिएट करते रहना है, ये भी डिसीजन किसका है? मेरा है या आपका है ना? तो इसलिए हमने जो किया, मैंने मिस्टेक की, ठीक है। अगर आपका डिसीजन है कि आई विल कंटिन्यू रिमेनिंग फॉर 2 to 3 days इन द सेम फीलिंग्स, आपका डिसीजन है। And therefore you will require more sort of attention until you are in that mist, because you are very low. किसी को भी attention कब चाहिए होता है? जैसे किसी को पैर चल नहीं रहा होता है, so they need support, क्योंकि उसके पास अपना शक्ति नहीं है। तो इसी तरह अगर आपको मुझे मेरा attention चाहिए, sorry, 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 because you don't have your own power. And in spite of it, you still that healing is not there, because I don't know how much is that gray groove you have created about the mistake I have done. तो आपका ग्रूव जितना बड़ा होगा उतना मुश्किल होगा। Therefore, बहुत एक ब्यूटीफुल एंड फीलिंग है कि the moment you take responsibility for everything in your life is the moment you can change anything in your life. क्योंकि जब मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, मिस्टेक किसी ने भी की होगी, कितनी भी की होगी,
पर मैं what I am going through, I am responsible, and therefore it is very easy for me to change anything. So this is very important, and when we follow this, it becomes easy for us to change ourselves. तो गिल्ट पे रहना चाहिए गिल्ट में रियलाइजेशन में रहो, गिल्ट में ना हो। तो इसलिए एक छोटा सा होमवर्क हम करेंगे। whenever any mistake, not repeating inside, ये हुआ, मुझे नहीं बोलना चाहिए, बोल दिया, क्यों बोला, मैं कल भी सोचा था नहीं बोलूंगा, फिर बोल दिया। So I'm not repeating inside, but realization, and second, determination and promise not doing it again. So because we know the simple, the deep karmic also account कि अगर हो गया, होना था, हो गया, it had to happen. There was some karmic account and हो गया, but now I won't do it again. So if I understand this whole spiritual knowledge, it becomes easy for me to realize also and to determine also. नहीं तो फीलिंग में डिटर्मिनेशन नहीं होती, रियलाइजेशन में डिटर्मिनेशन. So this is the simple, easy है. So we'll just see ourselves, meditation करते हैं, अपने आप को देखे. इस हफ्ते में सपोज मैंने कुछ किया भी, not so happy, I'm not happy about it. Let yourself, जो किया, कुछ ऐसी मिस्टेक हुई, maybe I'm suffering for that mistake until now. वो रूठ गया मेरे से, कुछ भी ऐसी मिस्टेक हुई, अभी did realize it. Yes, I did it. I should have not done it. Have a determination. I will never do it again. Take the power from the Supreme Soul for this. I, the soul, the point of light, a very powerful energy. Or I invoke the Supreme Energy. Is showering me, on me, the love, the peace. मेरे ऊपर आ रहा है. I'm feeling very powerful, blessed. And now, I now visualize all the scenes which had happened until now. Not so good. Okay, it happened. It was a big learning for me. And I'll just go on blessing the soul from within. आप अच्छे हो, आप अच्छे हो. You are very powerful, you are very sweet. As a soul, I bless the soul. Shan.
Okay. So everyone clear? Any questions? क्वेश्चन नहीं है दीदी, बट बड़ा मार्गदर्शक था ये। बहुत चीजें बहुत अच्छी तरह से आपने एक्सप्लेन करी। और कुछ चीजों के बारे में तो मतलब ऐसा लग रहा था जैसे सच में हमारे साथ ही हो रहा है। तो बहुत अच्छा लगा आज सुन के। थैंक यू। कभी जाते इस we go through all these things no throughout the day. जाने अनजाने में हो ही जाती, knowingly unknowingly. इंटेंशन नहीं भी होता है तो भी मिस्टेक हो जाती है। और फिर फील करने वाला पता नहीं कितना फील करता होगा, हमको भी नहीं मालूम। हम कहते मैंने तो सिर्फ इतना ही बोला, मुझे क्या पता था कि आप इतना उसको फील करेंगे। तो हमको वो भी एक बर्डन हो जाता है कि मैंने बोला ही क्यों था, इतना प्रॉब्लम। फिर वो बात एक बहुत बड़ा इश्यू बन गया। तो ये भी एक गेम हो जाता है हमारे लिए। तो इस कारण अपने आप को इस गेम से थोड़ा दूर करना। So no questions? Let's keep the questions for the next week's Next question week, and answer yeah. session. Yeah. ओम शांति दीदी, इसका ओम शांति। इसका एक लाइटर वर्जन है। लाइटर वर्जन ये है कि भी घर में बोलते हैं बच्चे कुछ भी करें आपको तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो क्योंकि हमको एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ठीक है, बच्चे हैं, दे विल डू द मिस्टेक्स एंड उनको हर मिस्टेक पे डांटना इज नॉट नेसेसरी। फर्क नहीं पड़ता डजंट मीन कि मैं पेन में हूं तो ही फर्क पड़ता है, मैं गुस्से में आऊं तो ही फर्क पड़ता है। दुनिया वालों का डेफिनेशन फर्क पड़ने का है कि तुम मेरे जैसे, वो वाइफ कहेगी मेरे जैसे टेंशन में रहोगे बच्चे के कारण तो फर्क पड़ता है। तो उन्होंने सोचा कि बच्चों को फर्क पड़े ना पड़े, मेरे को तो फर्क पड़ गया ना टेंशन में रह के। और फिर टेंशन में रह के फिर हम देखे कि मेरा टेंशन में रहने से बच्चों को कुछ फर्क पड़ा। पर्पस तो यही था कि मैं टेंशन में रहूंगी, बच्चों को कुछ फर्क पड़ेगा, बच्चों को तो फिर भी नहीं पड़ा। और मैं खुद भी, मुझे फर्क पड़ गया। सो दैट वी हैव टू एक्सप्लेन देम, अंडरस्टैंड कि बल्कि अगर हम फर्क नहीं पड़ेगा तो हम दूसरे को हेल्प कर सकेंगे उनके मिस्टेक्स। रियलाइज होता है, फर्क नहीं पड़ता। जी दीदी। Okay, so next week we'll do that question answer session. Okay. Thank you, Didi, for educating us on how we are individually and how we can realize and ponder upon the things which happens through and through with us. Dear all, let's meet next week with all our experiences. I would like everybody to please ponder upon whatever we go through and put some of the experiences here in the session so that it will help everybody to understand that how we are connecting through the lessons which we are getting in this session, and the learnings. Let's meet in the last session, which would be next week, for the ongoing series. Thank you everyone once again. Om Shanti Didi. Om Shanti everyone.